you're creating a very interesting D2C publishing business, and I don't know, is it an edtech you're building, is it a book business you're building, is it a D2C you're building? तो आप क्या build कर रहे हैं इससे? मतलब that's a very simple question I have for you. Thank you so much. First things first, hello everyone. Wonderful talking to you. Thank you for taking out time. Sir, आपका जो question है, the question that you are asking, honestly, there are multiple interpretations to it. My interpretation is it's a two-sided platform. One side, we talk to authors. Second side, we talk to readers. We talk to learners. Both the sides you want to hold a relation. So how typically publishers have have one of these relations. Basically, they'll talk to authors, sometimes directly, sometimes via literature agents. And on the other side, they will have retailers, they will have the Amazons of the world, the Flipkarts, and all these platforms of the world who will be talking and holding the relation with the end customer. So the publisher is really in that mix where they are only holding one side of the relationship. That is one thing that we pretty much don't agree with, holding both the relations, one with the supply side, which is the authors, the brands, the publishing, all the ones that are contributing content, and second side is the reader side, learner side. We are very particular about holding that relation, and that is what led us to build a D2C. That is what made us do D2C. That is not, D2C is a means to that relation. I am personally very passionate about that learner story. See, a book is a milestone. A book is never the end goal. Book 1 will be followed by book 2, will be followed by course 3, will be followed by classroom 4, and so on. So it's very important for me to hold that relation. So that is why I will say, from a business model perspective, it is a platform. From a marketing perspective, we operate as a D2C platform. Majority of our sales, upwards of 90% of our sales, come via our platform and Amazon and such marketplaces, where we are the ones largely shipping to the end reader, and that is a relation I'm very protective about. अनुराग, इसमें जो मुझे लगता है, जो अभी करंट बुक्स का इकोसिस्टम है, उसमें बहुत बड़ा ब्रोकन स्पेस है कि बुक अलग लिखी गई है, उसको उठा के आपने डिजिटल चढ़ा दिया है और किसी ने अलग ने पकड़ के रीड कर दिया है। तो ये 3 अलग चैनल बना दिए, किसी ने सिंगल चैनल से उसको मल्टी चैनल बना दिया, बट एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस की कमी है। तो वाज दैट द गैप यू वर लुकिंग टू सॉल्व? सर, व्हेन वी स्टार्टेड वी डिड नॉट रियलाइज कि हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। ये सब कई सारी चीज़ें डिड हैपन एंड आर हैपनिंग एज वी गो अबाउट इट, कि ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप ये है, ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप ये है। जैसे हमने D2C से स्टार्ट किया एंड ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप वाज मार्केट प्लेसेस। फिर उसके बाद ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप, बीच में एक क्विक कॉमर्स की अपॉर्चुनिटी आई। फिर ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप इज रिटेल स्टोर्स, मल्टी स्टोर आउटलेट्स, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स जो बोलते हैं। तो थिंकिंग इज वेरी क्लियर सर, कि एंड कस्टमर के लाइफ में बुक का रोल बहुत लिमिटेड है। वी वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट जर्नी, वी डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ अ सिंगल स्टेप। तो अनुराग, you told कि 90% of the books sold by Zebra Learn are physical copies, and you have cracked the code on physical copies. It's a very well designed book. In fact, बुक्स में जनरली पेज का कलर भी चेंज नहीं होता। आपके तो हर पेज आगे पीछे चेंज होते हैं। मुश्किल से वो 1-2 फोटो वाला पेज होता है। आई थिंक सो यू आर लाइक 100 GSM है ना? लोग तो 40, 50, 60 GSM पे खत्म हो जाते हैं। कुछ तो ब्लोटिंग पेपर बना देते हैं, बट द फील इज वेरी गुड। बट थैंक यू। तो ये डिजाइन फिजिकल बुक्स हो गई, बट व्हाट मेड यू लॉन्च एन ऐप? मतलब आपने मतलब जब बिकी ऑफलाइन रहा है, तो आपको डिजिटल एक्सपीरियंस पे इतना इन्वेस्ट क्यों करना पड़ा? सर, डिजिटल एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि टच पॉइंट्स बुक में नहीं होते। आपको मैंने बुक शिप कर दी, उसके बाद आपने क्या किया मुझे पता ही नहीं चल रहा है। ऐप का रोल लार्जली यही है कि आपके, और ऐप हमारे लार्जली अक्वायर्ड कस्टमर्स है, अक्वायर्ड कस्टमर्स या रीडर्स, जो लोग हमसे ऑलरेडी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। ऐप हम लोग मतलब वी डोंट मार्केट इट टू जिन्होंने बुक्स हमसे नहीं खरीदी अभी तक। तो ऐप हमारे लिए एक टच पॉइंट है। उसमें 2 चीज़ें हम करते हैं सर। एक, जो हार्ड कॉपी का एक्सपीरियंस है दैट इज़ रियली गुड। अब सर हम इसको डिजिटल कॉपी में भी कॉपी रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं। तो जितने भी लोग हार्ड कॉपी खरीदते हैं हमारे वेबसाइट से, हम सबको एक ई बुक फ्री में देते हैं। उसी सेम बुक का हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी फ्री में देते हैं, सो दैट वी नो व्हाट दे आर डूइंग। एंड ऑल्सो, जैसे आपने बोला कि आपको एक चुल है कि मुझे सब चाहिए, उसमें सब आता है। In fact, I'll tell you another piece. So when I was preparing for this podcast, I realized, and I was also exploring कि यार बुक लिखनी है, तो मैंने आपकी है ना बुक Bookpreneur, ये मैंने लिखी है। आप ही ने लिखी है। हाँ, it's an amazing book. It really decodes how to write a book and how to sell a book. It's a very brilliant book. अब करना है। अब रात में ये पता चला कि अनुराग का पॉडकास्ट देखा, उसमें बताया कि इसने अपनी पूरी प्लेबुक इसमें डाल दी है। तो अब रात को 11:30 बजे आया कि बुक पढ़नी है, तो मैंने गया देखा, वहाँ पे मैंने दोनों ऑर्डर कर दिया।
ठीक है, तो पहले डिजिटल बुक आ गई, हाँ, वो तो तुरंत फिर आ गया। हमने कहा फिजिकल आती रहेगी तो थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, फिर जब फिजिकल आएगी बाकी वो पढ़ लेंगे। तो आई थिंक सो डिजिटल हेल्प्स यू गेट द पर्सन हुक्ड इमीडिएटली, यस। एंड कि चलो कुछ तो पढ़ लो, आगे बढ़ जाओ। बट अगर डीप एक्सपीरियंस चाहिए तो फिजिकल आ जाएगी। हाँ, वो भी। और दूसरी चीज़ है सर, डिजिटल की लाइफ टाइम वैल्यू है। मैंने एक बार आपको ये बुक भेज दी ना, मैं उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता हूँ। हाँ, डिजिटल में मेरे पास आपके साथ एक रिलेशन है, अपग्रेड्स हैं। मैं उसमें बहुत कुछ आपको ऑफर कर सकता हूँ। तो हम लोग ने लास्ट 6 महीने में ये चेंजेस किए हैं, हर बुक के डिजिटल कॉपी के साथ एक ऑडियो बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। एक वीडियो बुक जो हमने बनाया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। हर चैप्टर का 10-10 मिनट का समराइज्ड वीडियो है। लगभग 120-130 मिनट आते हैं। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी, समरी देख लो, क्योंकि सब चैप्टर नहीं पढ़ो, टाइम बचेगा। हाँ, हाँ। तो हम लोग बुक्स भी लंबी बनाते हैं, 400 350 पेजेस की एवरेज बुक है। तो कुछ चैप्टर्स मत पढ़ो जो आपके काम की नहीं है। तो ऑडियो बुक हो गया, तीसरा ZAI हो गया। ZAI इज वेरी सिंपल, चैट जीपीटी जैसा है, उसका मच मोर सिंपलर वर्जन है, बट पॉइंट ये है कि रिट्रीवेबिलिटी में हेल्प करता है। आपने एक बार कुछ पढ़ लिया ना, आप उससे पूछो कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, क्या करूँ इस बुक के कंटेंट में से, और फिर उसके बाद वो ऑथर है ना, एट द एंड ऑफ इट बैक एंड पे एक इंसान ने जो बुक लिखी है। तो अब सब कुछ कर लिया, सब समझ गए, फिर लास्ट में आता है मीट दी ऑथर। उसमें आप ऑथर को डीएम करो ना लिंक्डइन पे। ऑथर्स लव, उनको आपको लगता है कि ऑथर्स को डिफिकल्ट है रीच आउट करना, ऑथर्स लव सच डीएम। आपको अगर कोई करता है ना डीएम, आप जब आपकी बुक आएगी, आपको कोई डीएम करता है कि मैंने आपकी बुक पढ़ी, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, शायद जो चीज़ आप कंसल्टिंग में चार्ज करोगे, कहीं किसी की फीस X होगी, वो आप उससे कई ज़्यादा उनको जस्ट फॉर द लव ऑफ द बुक आप उनको दे दोगे। एंड एवरी ऑथर डज दिस। वो इतने पैशनेट होते हैं बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो ये जो पूरा जर्नी है, ये सारी चीज़ें डिजिटल फुटप्रिंट से केटर हो सकती है। एंड एट द एंड ऑफ इट, वो लर्नर की लाइफ में there is a problem that needs to be solved, and there are multiple touch points: a book, a video, something like ZAI, and last में एक इंसान। वो इंसान के lived experience तो ultimate। आपने कनेक्टेड एक्सपीरियंस बना लिया। पीछे ना एक ऑथर थे, गणेश गणेश, आई डोंट नो इफ Okay, यू नो, I'm not। ही had written a book called Mastering Disruptions. It's a Okay. very interesting book. You should read it, especially for Absolutely। founders. He was the guy who thought कि इंडिया में इंडिया में फ्लिपकार्ट आ गया है, अब नेक्स्ट टाइप के ई कॉमर्स बिजनेसेस क्या होंगे। तो उन्होंने पूरी रिसर्च की और उन्होंने 2 गैप्स निकाले कि ज्वेलरी में आएगा नेक्स्ट और आएगा ग्रोसरी में, और उन्होंने 2 कंपनीज इन हाउस स्टार्ट करी। दैट वाज ब्लू स्टोन and Big Basket. Wow। So he created the team, he created the fund, he hired people, he made them the founders, he took a stake, Okay। he incubated it and then he sold it off. So that's a great story for तो us। जैसे आप कर रहे हो Book बुक्स की में, value। तो वो ना सेक्टर्स निकालते हैं, और वो उनका बड़ा अच्छा वो है, उनके साथ पॉडकास्ट भी किया था, बट वो बुक बहुत अच्छी है। तो व्हाट आई डिड इज आई फिगर्ड आउट कि मैं आईएसबी में पढ़ाता हूँ, तो वो भी आईएसबी में पढ़ा रहे थे। मैंने कहा इनको कहीं देखा है, के गणेश है, फिर मैंने उनकी बुक देखी, मैंने कहा इनको पॉडकास्ट पे लाना है। अब क्या किया, गए ऑनलाइन बुक डाउनलोड की, पूरी रात भर बैठ के मतलब घिसा मारा, बुक पढ़ी। अगले दिन मैंने उनको मिला, फिर मैंने कहा आप के गणेश है, आई हैव रेड योर बुक, और उनकी बुक में से ना कोट्स याद कर लिए थे मैंने। आपने बुक में ये बोला था, आपने वैनिटी मेट्रिक का था, तो एंड आई रियली लव्ड इट, क्योंकि हर बुक में ना एक ऐसी यूनिक चीज होती है जो उन्हीं के पास होती है। उनकी उसमें था, एक वैनिटी मेट्रिक्स की उन्होंने बात की थी कि बिजनेसेस शुड नॉट चेज वैनिटी मेट्रिक, वन वैनिटी मेट्रिक इज फॉलोअर्स, क्योंकि वो स्टेटी मेट्रिक है, उसके बढ़ने घटने से कोई रेवेन्यू का फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा था एक वायरलिटी क्वेश्चन कि हाउ डू यू गेट वायरल, तो वो था, तो वो उनको बात किया एंड ही वाज सो अमेज्ड, और हमने 4 घंटे गप्पे मारी, वेरी ग्रेशियसली एक्सेप्टेड टू कम ऑन माय पॉडकास्ट एंड आई हैड अ ब्लास्ट। पर डिस्कनेक्टेड एक्सपीरियंस है कि बुक है, उनका पॉडकास्ट कहीं है, उनका लिंक कहीं है, तो आप खुद जाके सर्च करो, खुद जोड़ रहे हो। तो आई लव्ड इट कि यू आर कनेक्टिंग ऑल ऑफ दिस फ्रॉम अ यूजर एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ऑमनी चैनल के ना मैं जनरली 3 एस्पेक्ट कहता हूँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू डिकोड योर ऑमनी चैनल स्ट्रेटेजी एंड ट्राइंग टू सी Correct। इन आवर फ्रेमवर्क वेयर इज द गैप। ठीक है, तो एक्सपीरियंस तो आपने कहा कि बुक फिजिकल है, डिजिटल है, पढ़ रहे हो, उसमें हमने ऑडियो भी डाल दिया, सर्च भी डाल दिया, एआई भी डाल दिया, और हमने उसको इन्फोग्राफिक बना दिया पढ़ने के लिए। बट अब इसमें मार्केटिंग कैसे होगी और सेल्स कैसे आएगी? तो इफ यू कुड जस्ट टॉक अबाउट वेयर डू यू डिस्कवर योर रीडर्स फ्रॉम, आई वुड नॉट से कस्टमर्स, क्योंकि एक फनी डेफिनेशन है, कस्टमर वो है जो कस्टमर है। ऐसा। तो पर आपके जो रीडर्स हैं, लर्नर्स हैं जो हैं, वो कहाँ से आपको मिलते हैं? हाउ डू दे डिस्कवर द बुक्स? 2-3 लार्जली देखिए, कैटेगरी वाइज 2 कैटेगरीज है जो
जो हम करते हैं, एक है आई थिंक एज यू सेड D2C. सो आई थिंक D2C के जितने टूल्स हैं लगभग सारे हम यूज़ करते हैं. D2C पे थोड़ा एक्सप्लेन करिए, व्हाट डज D2C फॉर यू मीन? D2C for us means where we have a relation with the end customer. That is what D2C मतलब is. आपकी ज़ीब्रा लर्न की साइट पे आके लोग खरीद रहे हैं बुक? साइट पे आना इज अ मीन्स टू इट. मेरा अगर मैं आपको जानता हूँ हम्म, तो मैं आपको जानता हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो दैट इज D2C फॉर मी. अच्छा। मतलब फिर ठीक है, देर आर मोर सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशंस कि डायरेक्ट टू कस्टमर, फिर आप उसमें डायरेक्टली बेसिकली मतलब कि आप मतलब उसने ज़ीब्रा लर्न से खरीदा है, तो चाहे अमेज़न से खरीदा, चाहे मेरी वेबसाइट से खरीदा? हाँ, अमेज़न में हमको पता नहीं चलता एग्जैक्टली लोग कौन है, बट कई बार लोग आके रिडीम करते हैं कुछ कॉपीज, ये सब चीजें तो पता चलता है, बट नॉट विद 100% एक्यूरेसी बिकॉज कनेक्टेड नहीं है ऑब्वियसली. सो दैट्स अ डिस्कनेक्टेड एक्सपीरियंस जो आप बोल रहे हैं. तो नोइंग द कस्टमर इज अ प्रायोरिटी फॉर यू, It इट is सीम्स। extreme. Knowing the customer and knowing what are they solving. Because every customer, आप क्यों बुक पढ़ोगे? पर ये आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या सॉल्व कर रहा है? क्या सॉल्व कर रहा है? देखो बहुत सारे तरीके होते हैं. आप एक रिसर्च पेपर है, एक रिसर्च पेपर ये कहता है कि आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं ना, पहली 7 बुक जो आपने टच की, फॉरगेट निकाला पढ़ा, नथिंग, जो टच की, दैट इज अ वेरी गुड प्रेडिक्टर ऑफ योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स राइट नाउ इन योर लाइफ. सिर्फ पहली 7 बुक. एंड ये जो है ये सर एवरीथिंग इट वर्क्स ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग वेरी चलो ये ब्यूटीफुली. टच करते हैं। मैं ना अपनी बताता हूँ, मैंने पिछली 7 बुक्स क्या खरीदी है। बताओ. एंड डोंट टेल मी फ्रॉम अ पॉडकास्ट पर्सपेक्टिव कि ये आपने मैं किसी जरूरत वाइज खरीदी. आपने पॉडकास्ट के ऊपर कोई बुक ही नहीं है आज के डेट में, देखा जाए तो सच्चाई है। पॉडकास्ट से कहने का मतलब है कि मान लेते हैं बुक ट्रेनर आपने खरीदी क्योंकि आपको आज ये पॉडकास्ट शूट तो ये भी हो सकता है कि मेरे को बुक लिखनी थी इसलिए मैंने पढ़ी, तो हाँ, दिस इज अ बस, प्रायोरिटी इन माय बस, लाइफ बस। राइट नाउ, है ना? आप बताओ 7 बुक आपने क्या खरीदी है? भी मैंने बहुत बुक्स खरीदी हैं। तो मैंने एक खरीदी है, ये एक ऑथर हैं, इनकी सारी किताब खरीदी है। इनका नाम है रसेल ब्रंसन। रसेल ब्रांसन. हाँ. तो इनकी खरीदी है .com सीक्रेट्स, ट्रैफिक सीक्रेट्स। क्यों तो खरीदी है? .com सीक्रेट्स और ये क्योंकि हिज बुक्स आर ग्रेट टू अंडरस्टैंड B2B बिजनेस में मार्केटिंग कैसे होती है। ओके. तो ये मतलब अमेजिंग ये थी। दूसरी मैंने एक्सपर्ट सीक्रेट, उसकी बहुत अच्छी किताब है। उनकी 3 बुक्स है. फिर मैंने दूसरी खरीदी थी, ये एलेक्स कुल्ट की एक क्लिक हियर करके एक बुक है, अमेजिंग बुक। ही इज दी CMO एंड हेड ऑफ एनालिटिक्स ऑफ मेटा। वाओ. उसने बुक लिखी क्लिक हियर। तो ही टॉक्स अबाउट व्हाट, मतलब जो दुनिया में सबसे ज्यादा मार्केटिंग का पैसा कमा रहा है उसका CMO, और वो लिख रहा है। इट्स अ अमेजिंग बुक है। वो अभी आई है, 6 महीने पहले आई है। तो मेटा भी मार्केटिंग कर रहा है बहुत इसके ऊपर। तो ये मेरी 3 थी, और मैं थोड़ा किंडल उठाता हूँ, है ना? किंडल में क्या पढ़ रहे हैं हम? हाँ, तो दूसरी अभी मेरी उसमें आ रहा है आर्ट ऑफ आस्किंग बेटर क्वेश्चंस। अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप पॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो अपने को क्वेश्चन पूछना है। फिर एक आई है, इसको स्किप करते हैं। द गाइड टू गो वायरल, और एक कस्टमर सेंट्रिसिटी। आप बताओ इसमें मुझे क्या नहीं समझ आया. आपको आपके बारे में मुझे क्या नहीं समझ आया इसमें? आई हैव अ प्रोफाइल. मुझे पता है आप अभी लाइफ में कहाँ हो, क्या कर रहे हो. दिस इज वेरी इंडिकेटिव. ये ही चाहिए. D2C से मैं ये समझना चाह रहा हूँ. एंड आई वॉन्ट टू हैव अ प्रिडिक्टिव, क्योंकि पता है पैटर्न्स होते हैं. ये बुक सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हो. अगर दूसरे आपने कोई भी इन 20 बुक्स में से मैं एक बुक इन 8 बुक्स में से मैं एक बुक निकालूंगा, उस बुक के 20,000 लोग अगर पढ़ने वाले होंगे, उसमें से कम 3,000 लोग का सिमिलर बकेट बनेगा. हाँ, ये बकेट्स है, ये यूज केसेस हैं, ये प्रॉब्लम्स है. इन प्रॉब्लम्स की लाइफ टाइम वैल्यू बहुत ऊंची है. मैं इनको अगर मैं प्योरली कमर्शियल साइड से देखूं, यहाँ पे बहुत सारे अपसेल्स है. अपसेल्स को मैं जाने दूं, अगर वो सब साइड से नहीं देखूं, तो यहाँ पे एक पूरी जर्नी है जो इन 3,000 लोगों को लेनी है. उसमें से शायद 500 लोग ही सक्सेसफुली लेंगे. 2500 लोग विल स्टार्ट बिकॉज इट मेक्स नो सेंस टू रीड अ बुक. मजा नहीं आता है. आपको पहले पैसे भरने हैं, फिर टाइम भरना है, और फिर एफर्ट डालना है. Nothing is in for you, but at the end of it you are taking a journey. तो आप ये कह रहे हो 7 बुक्स अगर किसी की पता चल जाए तो मेरे को प्रोफाइलिंग पता चलेगा कि व्हाट इज रील्स की जिंदगी में क्या चल रहा है. वो इंस्टाग्राम रील्स भी तो इसी पे बिल्ट है. इंस्टाग्राम रील में चैलेंज है कि वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है. तो आप 7 रील क्या देख रहे हो? मेरा मूड खराब है, मैं कुछ भी देख रहा हूँ. तो आप
तो लेट्स मूव टू द सेल्स चैनल। तो आप कह रहे हो कि फॉर यू वेरी इंपॉर्टेंट इज टू नो द कस्टमर एंड व्हाट ही इज इंटरेस्टेड इन, दैट हेल्प्स यू फिगर आउट द पोर्टफोलियो ऑफ व्हाट इज ही सॉल्विंग फॉर फॉर। राइट नाउ? हाँ इंटरेस्टेड तो 25 चीज में लोग होते हैं। बट इंटरेस्टेड पड़ता है पुण्य। अभी क्या उसको कौन चीज सा पेन किलर अभी चाहिए? क्या चल रहा है? जब मुझे पैर में चोट लगी है तो मुझे सिर्फ वो दिख रहा है। मुझे इंटरेस्ट मुझे क्रिकेट खेलने में है, बट वो अब जब आएगी तब बात करेंगे। आज मेरे को ये दिक्कत है। तो दिस इज जनरली, क्योंकि ये चीज इसलिए भी क्योंकि हमारा ऑफरिंग का सेट इज लिमिटेड।